Okay, students of class 4th, now we are going to start your term test 1 syllabus. Your term test 1 first chapter is your chapter 1 is chapter 1 number and numeration. Number and numeration. Number and numeration means number. When we write any type of number, so there are two forms to write the numbers: number figure form and numeration form. Figure form and numeration form. So in this chapter we will learn about any numbers figure form. Any numbers figure form. Suppose that we have the number 21. This is the figure form of the number. When we write this number in its numeration form, then we can write 20 in spelling 21. This is its numeration form of 21. 21 is the figure form, and this is in the spelling, this is the numeration form. मतलब किसी भी नंबर को सपोज दैट ये लिखा हुआ है आपका 34, मतलब इस 34 को लिखने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है आपका फिगर फॉर्म जिसको एज इट इज बोलते हैं 34, और एक होता है आपका न्यूमरेशन फॉर्म जिसको स्पेलिंग में लिखा जाता है 34. FOUR 34. So this form is called the figure form of 34. This is the numeration form of 34. Is that clear? And some topics also we will read about, in this chapter, that is predecessor and successor. You already know about the predecessor and successor. मतलब प्रेडिसीजर क्या होता है किसी भी नंबर का, और सक्सीजर क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो बात कर लेते हैं किसी नंबर का. सपोज दैट दिस इज 20. इस 20 का हमें प्रेडिसीजर निकालना है, प्रेडी और सक्सीजर. तो प्रेडिसीजर मतलब उसे जस्ट बिलो, जस्ट मोर लेस देन 1, मतलब 20 से 1 कम. तो 20 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 19 जो होगा ये होगा आपका प्रेडिसीजर, और 20 का अगर सक्सीजर निकाल रहे हैं तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 21 हो जाएगा आपका सक्सीजर. तो इफ क्वेश्चन आस्क अबाउट द प्रेडिसीजर एंड सक्सीजर ऑफ एनी नंबर, सो जब हमें प्रेडिसीजर निकालना हो तो उस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हमें सक्सीजर निकालना हो तो 1 को ऐड कर देंगे. इज दैट क्लियर? So now let's start the exercise. One more point, that is expanded form of the number. Suppose that this is a 342, and question ask about that write this 304 in its expanded form. This is the short form of the number. Write this number in its expanded form. Means 342. So 300 plus 40 plus 2. This is its expanded notation, or also we can say expanded form. Any number, one more number. This is suppose that 432. If question asks that write this number in its expanded form, so we will write 430 and 2. So this form is called the expanded form of this number, and this form is called the short form of this number. So in this chapter we will learn about these points. So start करते हैं exercise 1. Your exercise 1 is exercise 1 question number 3. 1 and 2 are the very simple question. Question number 3, your third question is
write in expanded form, means these numbers are written there, these numbers we have to write in expanded form। अभी मैंने बताया कि expanded form में होता है इन numbers को हम expand करके लिख देते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट 1 की। पॉइंट 1 पॉइंट ए 6827 मीन्स 6800 plus 20 and 7। so this form is called the expanded form of any number। so simply we write here 6827 as 6820 and 7। similarly part B, in this part 3179 मतलब 3170 and 9। part C 8105 मीन्स सिंपली 8105। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टेंस प्लेस है वो 0 है, तो हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8000 प्लस 100 प्लस, अब टेंस प्लेस 0 है तो आप लिख देंगे 00 एंड प्लस 5। मतलब इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सिंपली हम बात करेंगे पॉइंट डी की। पॉइंट डी जो है 4180, तो आपको दिख रहा है कि 4000 इजीली लिखा जाएगा, प्लस 100 लिखा जाएगा, प्लस 80 भी लिखा जाएगा, लेकिन वंस प्लेस आपका 0 है तो आप चाहें तो एक 0 और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन पार्ट ए short form, similarly just opposite question from third। part A 3456, simply 3456। मतलब आपका जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस फॉर्म को हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपली लिख देंगे। पार्ट बी की बात करें 7090 एंड 8, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100th प्लेस नहीं है, तो इसका मतलब 100th प्लेस यहाँ पर क्या होगा, प्लस लगा के 00 होगा। इसके बीच में होना चाहिए था कि प्लस 000, फिर इसके बाद में प्लस 90 प्लस 80। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत है, दोनों सही हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पार्ट बी हो जाएगा आपका 7098। पार्ट सी 4220, यहाँ वंस प्लेस नहीं है मतलब 0 है, 4220। 6005 मतलब 100th प्लेस नहीं है, 10th प्लेस नहीं है। इसका मतलब ये नंबर कुछ इस तरीके से है कि 6000 प्लस 00 प्लस 0010 प्लस 5, मतलब 6000 005, 6000 मतलब 6005। क्वेश्चन फोर्थ इज क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अभी हमने बात की थी प्रेडिसर एंड सक्सीजर के बारे में, तो प्रेडिसीजर और सक्सीजर हो जाएगा आपका फिफ्थ। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बुक में फिल कर लेंगे, सारे क्वेश्चन बुक में ही फिल करना है, आपको नोटबुक में नहीं करना है। नोटबुक के लिए आप सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस करेंगे, ये फिलअप्स टाइप क्वेश्चंस हैं, आप नोटबुक में मत करिए, बुक में ही फिल कर लीजिएगा, बुक चेक कर ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट ए, predecessor of 2000's predecessor means just simply subtract 1 from that number। मतलब 2000 में से 2000 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 1999। अब बात करते हैं पॉइंट बी, द सक्सीजर ऑफ 3270। सक्सीजर मीन्स प्लस 1, मतलब सिंपली आप उसमें एक ऐड कर दीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए, प्लस 1। जब आप इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 3271। प्रेडिसीजर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट 1 एंड सक्सीजर का मतलब होता है ऐड 1। पॉइंट सी इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में अभी बात नहीं की थी, अभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। किसी भी नंबर की बात कर लेते हैं, ये कोई सा नंबर लिखा है, बात कर लेते हैं, कोई नंबर लिखा है 2468। इस नंबर में
यहाँ पर 4 डिजिट हैं, इन 4 डिजिट्स में हर नंबर अलग अलग डिजिट पे बैठा है। ये 8 जो है 1st प्लेस पर है, 6 10th प्लेस पर है, 4 100th प्लेस पर है और 2 1000th प्लेस पर है। तो जिस भी नंबर का, जिस भी डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू पता करना है तो उसकी वैल्यू में उसकी प्लेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। नाउ बात करते हैं थर्ड डिजिट, दिस इज 4। नाउ इफ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी देयर द 4 into its place, so simply multiply the digit with its place। डिजिट क्या है? 4 है, इसका प्लेस कौन सा है? 100 से है, मतलब हम बात कर रहे हैं तो 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 400 हो जाएगी। अगर इसी नंबर में हम बात करें 2648, इसमें बात करें हम 6 की 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 की प्लेस वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरीके से PV ऑफ 6 इक्वल टू, तो 6 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्लेस का, इसका प्लेस है 10, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का, तो हो जाएगा 6 1 जा 6 से 60। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 60 होगी। 4 की प्लेस वैल्यू 400 होगी। 8 की प्लेस वैल्यू 1 प्लेस पर है तो आप 8 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 जा 8, 8 की प्लेस वैल्यू 8 होगी। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस 1000 है तो 2 में आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 हो जाएगा। मीन्स सिंपली टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट सिंपली मल्टीप्लाई विद द डिजिट टू इट्स प्लेस। नाउ टॉक अबाउट द फेस वैल्यू। What is the face value? To find out the face value of any number, so keep this one thing in your mind that all the numbers, in all the numbers, the any digit's face value is the value itself. Means let's talk about a number. Suppose that this is the number 2468. इस नंबर में बात करें कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू जो होगी वो 4 ही होगी। 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट किसी भी नंबर की फेस वैल्यू नंबर इट्स डिजिट इटसेल्फ होती है। किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस नंबर। हियर द 8 इज एट 1 प्लेस। तो 8 कहाँ है? 1 प्लेस पर है, तो सिंपली आप 8 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 जा 8, तो आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 की? 8 1 जा 8। नाउ पॉइंट डी पॉइंट इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। नाउ 7th प्लेस इज देयर 1000th, मीन्स 7 का प्लेस क्या है? 1000 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 1000 का। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर विल बी देयर 1000। नाउ पार्ट ई पार्ट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन दिस नंबर। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 0 भी ही होगी। 0 इज देयर एट 100th प्लेस, so simply multiply 0 with 100. When we multiply 0 to 100 it gives 0 only. किसी भी नंबर में आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। So any numbers 0's place value and face value both are 0. 6th question, make the smallest and greatest 4-digit number using the digits 4 0 2 1 each only once. इट मीन्स ये जो गिवन डिजिट्स हैं, गिवन डिजिट्स का यूज करके ही आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए एक रूल होता है, डिजिट्स आर 4 0 2 and 1 to form the smallest and greatest number. Now smallest and greatest number are digits are 4 0 2 1. To form the smallest number and greatest number, what we have to do? To form the smallest number, simply put these digits in its
ascending order. Its ascending order will be there 0, 1, 2, 4, but there is a important thing to keep in our mind that zeros place is extremely second place. मतलब आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पर आएगा एक्सट्रीमली लेफ्ट से, ये कभी भी लास्ट प्लेस पे एक्सट्रीमली लेफ्ट नहीं आएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जीरो हमेशा लेफ्ट से सेकंड प्लेस पर होगा। बात कर रहे हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सिंपली प्लेस ऑल द डिजिट्स इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर 4 to 10. So this will be your ग्रेटेस्ट नंबर एंड दिस विल बी योर स्मॉलेस्ट नंबर। एक बात ध्यान रखना है, डिजिट्स में जीरो हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जीरो को आप सेकंड प्लेस पर रखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जीरो वंस प्लेस पर रहेगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ योर सेवंथ क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड 8th क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको प्लेस करना है नंबर्स को। आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। सो प्लेस दीज नंबर्स, देयर आर 2 points in 7th question. To place these numbers in ascending order, first of all we have to put the smallest one. Smallest number is 4035. Then greater number from 4035, this is 4217, 4315, 4479. You already know about the ascending order and descending order. No problem will be there, I hope, to put the numbers in ascending and descending order. Now 8th question, arrange in descending order. Very simple question, you can easily put there the solution of these numbers. Now the 9th question is use the sign greater than, less than or equal to, means these numbers we have to compare. हम कंपेयर करेंगे इस नंबर को इस नंबर के साथ, कौन बड़ा छोटा कौन इक्वल है, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ, इस नंबर को इसके साथ। तो हम देख लेते हैं कंपेयर करके 1002, 1020, 1002 and 1020 means this number is greater, so place the this sign, means this number less than this. 8357, 8357, both are equal. Now this part 3540, 3500, 3400, here the hundredths place is different. First of all, to compare these numbers, we compare the extremely left digits. 3 and 3 both are equal. Then 5 and 4, so 5 is greater than 4. It means this number is greater than this. 6825, 6827. So this 7 is greater than this. This is the complete solution of your exercise 1. Exercise 1, 9 questions are there. Now we will start exercise 2 later, so please wait for the exercise 2. If you have any type of doubt in exercise 1, watch the video 2-3 times. Your doubt will be cleared. Next video of exercise 2 will be given later. Thank you.